Hello everyone, my name is Akil. Welcome back to my YouTube channel Amazing Paramedical. Students, take a moment to think about our body's hidden heroes. It is not our heart, not our brain, but two small bean shaped organs working tirelessly 24/7 to keep our entire system balanced. Yes, I'm talking about the kidneys. They are more than just filters. They are the ultimate multitaskers. Every single day, our kidneys process 180 liters of fluid, cleaning our blood of waste, controlling our blood pressure, regulating crucial electrolytes, and even stimulating the production of red blood cells. In fact, our entire blood volume passes through them about 12 times every hour. So, in today's video lecture, we are going to discuss about the anatomy and physiology of kidneys. So, let's begin with today's video lecture. Students, first we'll discuss the anatomy of kidney, then after this we will go for the physiological part of kidney. Kidneys are pair of excretory organs, bean-shaped organs, each about the size of a fist. Students, kidneys का प्राइमरी फंक्शन होता है यूरिन का प्रोडक्शन करना और इस यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना, जिसकी वजह से किडनीज को यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों में कंसिडर और स्टडी किया जाता है. किडनीज का शेप होता है बीन शेप, एज यू कैन सी हियर इन द इमेज इट हैज गॉट बीन शेप एंड द नॉर्मल कलर ऑफ द किडनी विल बी रेडिश ब्राउन. Okay, इनका नॉर्मल कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर. Okay, yes. So now the next part is location of the kidney. Where exactly they are located? They are located on either side of the spine in the retroperitoneal space. Okay, as I can show you here in the image. Okay, kidneys हमारे पोस्टीरियर साइड और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स. ओके, ईच किडनी इज प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एट द सेंटर वी हैव गॉट द वर्टिब्रल कॉलम. ओके, एंड उसके साइड्स में हमारे किडनीज प्रेजेंट है स्टूडेंट्स. ओके, अगर वर्टिकली देखा जाए तो T12 12 थोरैसिक वर्टिब्रा से लेके लंबार थर्ड तक इनका एग्जैक्ट लोकेशन होता है. बट लेफ्ट किडनी से अगर लेफ्ट किडनी से कंपेयर किया जाए तो राइट किडनी थोड़ा नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुए रहती है, क्योंकि उसके एग्जैक्टली उसके ऊपर के साइड में ही लिवर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स. एज आई कैन शो यू इन द अनदर इमेज. यस, here if you can see here we have got the liver on the upper side, which is why right kidney थोड़ा नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ है and left kidney अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है स्टूडेंट्स. ओके, यस, एंड ये नॉर्मल होता है स्टूडेंट्स. इसमें किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी है या कोई डिसऑर्डर है बोल के नहीं कह सकते हम. दिस इज नॉर्मल इन ऑल द ह्यूमन बीइंग्स. ओके, यस. So the next part after the location, the kidneys will occupy the epigastric, hypochondriac, lumbar and umbilical regions. Okay, we have got total 9 divisions. अगर abdominal को 9 divisions में अगर divide किया जाए students, उन 9 divisions में kidneys epigastric region, hypochondriac, lumbar और umbilical regions में present होता है. Okay, yes. The next anatomical part is weight of the kidney. In males, the kidneys weight will be 150 gram, whereas in females the kidneys weight will be 135 gram. Each kidney का weight 150 gram होता है मेल में और फीमेल्स में 135 gram होता है. And size of the kidney will be 11 centimeter long, 6 centimeter broad and 3 centimeter thick होता है. Okay, as I can show you in the image. Okay, so इनका लेंथ कैसे होगा स्टूडेंट? 11 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड रहेगा और 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस रहेगा स्टूडेंट्स. ओके, यस. नेक्स्ट वन, किडनी हैज अपर एंड लोअर पोल्स. ओके, अगर किडनी को देखा जाए तो इसका अपर और लोअर पोल रहेगा स्टूडेंट्स, और ये मीडियली कॉन्केव रहेगा. ओके, अपर पोल यहाँ पे अपर पोल और लोअर पोल रहेगा और मीडियली ये कॉन्केव रहेगा. और लैटरली अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये कॉन्वेक्स हम कॉन्वेक्स दिखेगा स्टूडेंट्स. हम लोग को यहाँ पे कॉन्वेक्स रहेगा और मीडियली कॉन्केव शेप में रहेगा स्टूडेंट्स. ओके, यस. सो द नेक्स्ट पार्ट इज borders. It has got two borders, anterior border and posterior borders. Okay, yes. So now we will discuss the parts of the kidney. So before directly starting with parts of the kidney, that is nothing but internal structure of the kidney,
First, we'll see the external structure. In the external structure, as I can show here in the image, okay, अगर externally देखा जाए, so यहाँ पे three primary layers present होते हैं students. Okay, here we have got three primary layers. The first layer will be renal capsule. The second layer will be adipose capsule. The third layer will be renal fascia, students. Okay, so that is the from the outside towards the inward. Okay, so that is the external layers of the kidney. First one will be renal capsule, second will be adipose capsule, third will be renal fascia. Okay, then comes the internal structure of the kidney. Okay, if we take the cross section, अगर cross section लिया जाए kidney का, अगर internally देखा जाए तो हम लोगों को ये कई सारे structures देखेंगे हम लोग. Okay, so now we'll discuss one by one each structure. The first part of the internal structure is renal cortex. Renal cortex is the outer light colored region. This is where exactly the blood is filtered. Okay, why? Because it will contain the nephrons filtering units. As I can show you here in the image. Yes, here we have got the renal cortex region, and here exactly in this region only the nephrons filtering unit will be present. The glomerulus will be present in this region. So इस glomerulus की मदद से जो भी blood आया रहेगा वो blood इसमें से ही filter होके, and that filtered part is again passed on to the next part, that is medulla here. Okay, yes. So the next internal structure is renal medulla. The renal medulla is the inner layer with cone shaped structures called renal pyramids, which will collect the urine. Okay, so as you can see here in the image, yes, here we have got the pyramid like structures है यहाँ पे, जिनको हम मेडुला या रीनल मेडुला के नाम से जानेंगे स्टूडेंट्स. जो भी यहाँ से फिल्टर होगा कॉर्टेक्स रीजन में, जो भी ब्लड फिल्टर होगा, वो फिल्टर होने के बाद जो यूरिन प्रोड्यूस होगा, उस यूरिन को कलेक्ट करने वाले या रिसीव करने वाले ही रहेंगे हमारे रीनल पिरामिड्स या मेडुला, रीनल मेडुला स्टूडेंट्स. ओके, यस. So that is the second part. The third part is renal pelvis, a funnel-like area that collects urine from the pyramids and channels it into the ureter. Okay, so the next part is the renal pelvis. जो भी यहाँ पे जो funnel-like जो structure देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे renal pelvis. जो यहाँ पे जब मेडुला जो यूरिन कलेक्ट करेगा ग्लोमेरुलस के पास से, जो कॉर्टेक्स रीजन से आया हुआ यूरिन कलेक्ट करने के बाद वो रीनल पेल्विस को पास ऑन करेगा. सो रीनल पेल्विस क्या करेगा, तमाम यूरिन को कलेक्ट करेगा. कलेक्ट करने के बाद उस यूरिन को यूरेटर्स में ट्रांसफर कर देगा स्टूडेंट्स. जो यहाँ पे जो पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, इस यूरेटर के अंदर ये रीनल पेल्विस अपने तमाम यूरिन को फॉरवर्ड कर देगा या पास कर देगा. यूरेटर्स उस यूरिन को लेकर फर्दर यूरिनरी ब्लैडर के पास ट्रैवल करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, यस. So that is renal pelvis. The last part is nephrons. Nephrons are the microscopic functional units that filter the blood and form the urine. Each kidney contains over 1 million nephrons students. Okay, so nephrons क्या रहेंगे, ये हमारे किडनीज के फंक्शनल यूनिट्स रहेंगे स्टूडेंट्स. जो भी ब्लड आते रहेगा उस ब्लड को फिल्टर करेंगे और यूरिन का प्रोडक्शन करते रहेंगे. ओके, इन शॉर्ट अगर इसका भी थोड़ा बहुत अगर हम एनाटॉमी देख लेंगे स्टूडेंट्स, हियर वी हैव गॉट द इमेज ऑफ द नेफ्रॉन. ओके, यस. सो नेफ्रॉन के द पार्ट्स क्या रहेंगे स्टूडेंट्स. द फर्स्ट पार्ट विल बी ग्लोमेरुलस या बाउमन्स कैप्सूल के नाम से भी जाना जाएगा. ये यहाँ पे पहला फर्स्ट एरिया रहेगा जहां पे ब्लड हमारा फिल्टर होगा स्टूडेंट्स. ओके, सो दैट इज द इनिशियल फिल्ट्रेशन site where the blood will enter and the filtering process will begin. Exactly in this region the filtering process will begin students. So जितना भी जो भी यहाँ पे filtration होगा, उस filtration के बाद वो further इस tubule या tube like structure में enter करेगा students. Okay, so जिसको हम renal tubule के नाम से जानेंगे students, ये whole tubular structure को. So this renal tubule is nothing but the long winding tube where the substances are reclaimed and the waste is concentrated. Okay, so ये ट्यूब्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा स्टूडेंट्स, जो भी वेस्ट यहाँ से आएगा, जो भी फिल्टर्ड पार्ट आएगा, उस फिल्टर्ड पार्ट को रिसीव करेगा. एंड अगर उस फिल्ट्रेशन में अगर बॉडी को फिर से यूज होने वाले अगर कोई सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं या कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो सकता है या वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, उन तमाम चीजों को ये वापस फिर से ब्लड के अंदर फिर से उसको रीअब्सॉर्ब करवाएंगे. लाइक बॉडी उसको वापस फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेगी और सिर्फ यूरिन ही बच जाएगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे जो भी वेस्ट रहेगा वो उतना ही बच जाएगा. ओके, यस. सो दिस इज ऑल डन बाय दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ओके, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा.
सबसे पहला रहेगा हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकंड पार्ट रहेगा हमारा लूप ऑफ हेनले, थर्ड पार्ट आएगा हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, सो ये ट्यूब्यूल्स क्या करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली फिल्ट्रेशन को रिसीव करेंगे और रीअब्जॉर्प्शन करवाते रहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, यस। इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो आप लोग ये कैपिलरी या ब्लड कैपिलरी जो इसको सराउंडिंग में जो इसको यहाँ पे लिपटे हुआ है जो देख रहे हो आप लोग, ये क्या करते रहेगा, ये सीक्रेशन में हेल्प करता रहेगा स्टूडेंट्स। जो भी यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे फिल्टर आउट नहीं हुए रहता है एंड वो फर्दर ट्रेवल किए रहते हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ आने के बाद बॉडी क्या करती है, उसको फिर से इन ट्यूबुलर इन कैपिलरीज के मदद से उसको वापस फिर से इस ट्यूब्यूल्स के अंदर उसको फिर से सीक्रेट कर देगी स्टूडेंट्स, जिसको हम ट्यूबुलर सीक्रेशन के नाम से जानते रहेंगे। ओके, यस। सो आफ्टर कंप्लीट फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन इन 3 स्टेजेस के बाद जो सबसे लास्ट में जो वेस्ट बचेगा स्टूडेंट्स, वो जाके हमारे कलेक्टिंग डक्ट में रिसीव होगा एंड वहां से द लास्ट प्रोडक्ट जो निकलेगा, जो लास्ट रिजल्ट निकलेगा, वो रहेगा यूरिन स्टूडेंट्स। ओके, यस। सो दैट इज द लिटिल बिट एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन के ऊपर ही मैंने एक सेपरेट एक वीडियो बनाया स्टूडेंट्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, प्लीज फॉलो दैट लिंक टू गेट to know more about the nephrons. Okay, yes. So the next part is the blood supply of the kidney. Blood supply will be from the renal arteries and the renal veins. Nerve supply will be from the renal plexus. Okay, yes. So this is all about the anatomy of the kidney. Now we'll discuss the physiology part of the kidney. Okay, yes. The first part of the physiology is glomerular filtration. Okay, so mechanism is the blood pressure forces the water and small solutes like glucose, salts, amino acids and waste products like urea out of the glomerulus and into the Bowman's capsule. But large substances like blood cells and the large proteins are too big to pass and remain in the blood. Okay, जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर देख सकते हो स्टूडेंट्स आप लोग, यस, जो यहाँ पे जो एक फिल्टरिंग यूनिट है स्टूडेंट्स, जिसको हम बाउमन्स कैप्सूल बोल रहे हैं, इस बाउमन्स कैप्सूल में जो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी का जो नेटवर्क फॉर्म हुआ है, इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। सो जो यहाँ पे रीनल आर्टरीज की मदद से जो यहाँ पे ब्लड आ रहा है फिल्टर होने के लिए, विथ लॉट ऑफ प्रेशर इट विल बी कमिंग, बहुत ज्यादा प्रेशर से आते रहेगा। ये जो ब्लड यहाँ पे जो आया है, इस ब्लड के अंदर से जो भी यहाँ से मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे, वो तमाम यहाँ से फिल्टर होंगे, फिल्टर होके इस बाउमन कैप्सूल्स के जरिए ये ट्यूब्यूल के अंदर एंटर करेंगे। बट द लार्ज पार्टिकल्स लाइक रेड ब्लड सेल्स हो सकते हैं, कई सारे लार्ज प्रोटीन्स हो सकते हैं, वो यहाँ से फिल्टर आउट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका साइज लार्ज रहेगा। ओनली स्मॉल पार्टिकल्स विल गेट फिल्टर्ड आउट हियर इनटू दिस ट्यूब्यूल। ओके, सो इसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यस। So the next part is tubular reabsorption. The body needs to keep the good stuff as the filtrate moves through the renal tubule. About 99% of the water, most of the essential nutrients like glucose, amino acids, necessary ions are reabsorbed back into the surrounding capillary students. Okay, so as you can see, as I was telling you, जो भी यहाँ से फिल्ट्रेट आया हुआ रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर उस फिल्ट्रेट्स के अंदर फिर से बॉडी को यूज होने वाले अगर कई सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, वो चाहे वाटर हो सकता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, अगर बॉडी को उनकी वापस फिर से जरूरत पड़ सकती है, तो बॉडी क्या करेगी, इन कैपिलरीज के मदद से उन तमाम फिल्ट्रेट के अंदर रहने वाले अपनी यूजफुल सब्सटेंसेस को फिर से रीअब्सॉर्ब करेगी, फिर से उसको उसके अंदर से फिर से उसको रीअब्सॉर्ब कर लेगी, अपने बॉडी के अंदर फिर से उसको पुल कर लेगी स्टूडेंट्स। इसको हम ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन बोलेंगे। ये होता है हमारा सेकंड स्टेज। ओके, यस। द थर्ड स्टेज इज ट्यूबुलर सीक्रेशन. This is the body's chance to clean up any final unwanted substances that weren't initially filtered. Things like excess potassium, drugs, toxins, and hydrogen ions to balance the blood pH are actively moved from the blood into the tubule. Okay, as you can see here in the image. Yes, here at the surrounding we have got the capillary. Okay, जो यहाँ पे blood capillary जो इसको surrounding में जो हक किया हुआ है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे इस blood में यहाँ पे फिल्टर होने के दौरान
अगर कई सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फिल्टर्ड आउट हुए ही नहीं ठीक से, प्रेशर के अगर ठीक से प्रेशर अप्लाई ही नहीं हुआ तो कई सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फिल्टर आउट नहीं होंगे एंड वो बिना फिल्ट्रेशन के ऐसे ही फर्दर मूव होते जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो बॉडी इनको क्या करेगी, फिर से कई सारे वेस्ट मॉलिक्यूल्स को इन ब्लड कैपिलरी के मदद से इन ट्यूब्यूल्स में डायरेक्टली इधर से ही यहाँ पे इसके अंदर ही यहाँ पे सीक्रेट कर देगी स्टूडेंट्स, उसको वापस फिर से पुश कर देगी और वो तमाम वेस्ट फिर से इस ट्यूब्यूल्स के अंदर एंटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, यस, इसको हम बोलेंगे ट्यूबुलर सीक्रेशन। ओके, सो इसका रिजल्ट क्या होगा इन तीनों स्टेज के बाद, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, इन 3 स्टेजेस के बाद जो सबसे लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा हमारा यूरिन होगा स्टूडेंट्स। ओके, जो लास्ट में कलेक्टिंग टेक में कलेक्ट हो जाएगा। ओके, यस, सो दिस इज लाइक एक प्राइमरी फंक्शन होता है, ये हमारे किडनीज का प्राइमरी फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, लाइक ब्लड को फिल्टर आउट करना एंड यूरिन का प्रोडक्शन करना। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शन, अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइमरी फंक्शन, देयर आर सम मोर फंक्शन विच आर लाइक क्रिटिकल फंक्शंस या इंपॉर्टेंट फंक्शंस कह सकते हैं। इन अदर कई सारे फंक्शंस को भी कैरी आउट करता है हमारा किडनी। ओके, नाउ विल सी द other functions of the kidney. Okay, yes, the first function of the kidney is blood pressure regulation. They produce the enzyme renin, which is critical for a complex system that manages the blood pressure. ओके, सो किडनीज का और एक फंक्शन क्या होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी बना कर रखते हैं, लाइक हाइपरटेंसिव स्टेट में, लाइक हाइपरटेंशन को बढ़ाना डिक्रीज करना, ये भी इनके कंट्रोल में ही रहता है। किडनीज में और या नेफ्रॉन्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होगा जिसको रेनिन नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। इस रेनिन एंजाइम्स को ये रिलीज करता रहेगा जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, यस, the second function is red blood cell production. The red blood cell production is nothing but they produce the hormone called as EPO, that is erythropoietin, which will stimulate the bone marrow to make red blood cells. ओके स्टूडेंट्स, जब भी रेड ब्लड सेल्स का नीड होगा या रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन का जब नीड होगा स्टूडेंट्स, सो किडनीज क्या करेंगे, तब एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करेंगे। ये एरिथ्रोपोएटिन स्ट्रेट अवे हमारे बोन मैरो को ट्रैवल करेगा, बोन मैरो के पास जाके ये क्या मैसेज कैरी करेगा, वहां पे रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन का मैसेज देगा स्टूडेंट्स, तब जाके रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। अगर एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन अगर रिलीज ही नहीं हो पाए किडनी से, तब रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। सो दैट इज अ वेरी मेजर फंक्शन ऑफ अवर किडनीज। ओके, द लास्ट फंक्शन इज बोन हेल्थ। दे कन्वर्ट द विटामिन डी इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म एसेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग द कैल्शियम। ओके, सो विटामिन डी को अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा किडनी का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे जब ये विटामिन डी अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तब जाके ही ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर पाएगा स्टूडेंट्स। ओके, यस, so this was all about the kidneys anatomy and physiology or structure of the kidney students. Okay, so if you have any doubts or questions related with this topic, so please put all your doubts and questions in the comment section. Okay, so I'll try to answer to all your questions and doubts students. Okay, so if you are new to this channel, please do subscribe and hit the like button. We'll meet in the next video with more exciting topics. Till then, stay safe, keep sharing, keep learning. Thank you students.